देखो बेटा, जब तक बाकी लोग आ जाए ये क्वेश्चन करिए। सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose vertices are plus or minus 6, 0 and foci are plus or minus 4, 0. Okay? So डायग्राम कैसा होगा इसका? The standard ellipse, vertices are 6, 0 and minus 6, 0 and foci are 4, 0 and minus 4, 0. So इस एलिप्स का इक्वेशन चाहिए। So लॉजिक क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड एलिप्स। सो देखने में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी जैसा होगा या नहीं? एज अ फर्स्ट थिंग, यस। So vertex is a comma 0 and minus a comma 0. According to the problem, a comma 0 is 6 comma 0. So a equal to 6. First step clear? Yes, sir. Foci are nothing but plus or minus a comma 0, which is given as plus or minus 4 comma 0. इसका मतलब a कितना है? 4. So e is equal to 4 by 6, 2 by 3. ऐसा एक्सेंट्रिसिटी चाहिए तो एक्सेंट्रिसिटी भी आ जाएगा। हमको सिर्फ b चाहिए। सो b के लिए एक्सेंट्रिसिटी निकालने का भी जरूरत नहीं है। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर ना, ऐसा। दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर जो है, a is 6, so a square is 36 minus ae is 4, so a square is 16, so 20 होगी। So what is the equation of ellipse? X square by 36 plus y square by 20 is equal to 1. Clear again? Okay? Yes, sir. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Second. So similar question दे रहा हूँ। Vertices are 0, plus or minus 4 and foci are 0, plus or minus root 7. Find ellipse. So I want you to do this. देखिए ये कर सकता है कि नहीं? What is the difference between first question and second question? Vertical ellipse. वर्टिकल एलिप्स। ऐसा कि फोसाई y एक्सिस पे है और वर्टिसेस भी y एक्सिस पे है। So इसमें फर्स्ट स्टेप इज this equation also looks like x square by a square plus y square by b square equal to 1, but this time b will be greater than a. Yes or no? So according to the problem, vertices are 0, plus or minus 4, but vertical ellipse का जो vertices है वो 0, plus or minus b होगा. So b equal to 4. Is it? Foci are 0, plus or minus b, which is same as 0, plus or minus root 7. So b का वैल्यू कितना है? root 7. यहाँ तक क्लियर? So b आपके पास है, a का जरूरत है। So what is the relation between a square and b square? a square is equal to b square minus b square e square, vertical ellipse. ऐसा is equal to 16 minus 7, 9 हो गया, right? So what is the equation of ellipse? X square by 9 plus y square by 16 is equal to 1. Clear again?
देखिए y के नीचे नंबर बड़ा हो गया, देखिए इस बार। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। foci are plus or minus 2 comma 0, eccentricity is equal to half. Find equation of ellipse. So foci are on x-axis. So x square by a square plus y square by b square equal to 1. a greater than b होगा ना इस ellipse के लिए? ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. So now AE equal to 2, सही है क्या? क्योंकि foci का कोऑर्डिनेट जो है प्लस और माइनस 2 एंड E is equal to half. So यहाँ से A equal to 4 हो जाएगा। Yes, sir. एंड B चाहिए तो B square is equal to A square minus A square E square, सही है? A square is 16, यहाँ से A square E square is 4, so 12, सही है क्या? So what is the equation? X square by 16 plus Y square by 12 is equal to 1. ये भी समझ में आया? ओके ना? foci are 0 plus or minus 4, E equal to 4 by 5. इसके लिए आपको करना पड़ेगा फाइंड इक्वेशन। ध्यान से देखिए, ये वर्टिकल एलिप्स। कैन समवन गिव मी द आंसर फॉर दिस? ठीक है, अगर समझ में आए तो जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी आंसर दे दीजिए मुझे। X square by 9 plus y square by 25 equals to 1. देखिए चेक करिए सही है क्या नहीं। अगर सेम आंसर आए तो हाथ रेस कर लीजिए। You get the same answer, raise your hand. Dipanwita, same answer. Sarnik, same answer. Okay. Okay, good. Good. So जल्दी मैं कर ले रहा हूँ. So BE equal to 4, E equal to 4 by 5. So B equal to 5 आएगा. A square is equal to B square minus B square E square. So 25 minus 16 equal to 9. So you have A square, you have B square. So the answer is right. Answer is right. So I'm going to the next page, okay?
Next question. Eccentricity is equal to 3 by 4. Foci on y-axis. Center at origin. Passing through 6, 4. So I want you to find the equation with these properties. कर सकते हैं? Can you do this? Yes. Yes, sir. So ये भी बहुत difficult नहीं है. देखिए foci on y-axis. So x square by a square plus y square by b square equal to 1 where b greater than a. ये वाला केस है ना इस बार. Eccentricity का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 1 माइनस a square by b square. For this case है सर. है ना, e इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस छोटे नंबर पे बड़ा नंबर. सो e स्क्वायर 9 by 16 is equal to 1 minus a square by b square. So a square by b square is equal to 1 minus 9 by 16. So 7 by 16 होगा ऐसा. यहाँ तक क्लियर है a square by b square? Yes, sir. So this is the first equation. What is the second equation? Second equation कहाँ से आएगा? The ellipse is passing through the point 6, 4. So 36 by a square plus 16 by b square equal to 1 होगा या नहीं? Right? Yes, sir. So you have to solve this condition and a square by b square is equal to 7 by 16. ये दोनों conditions को solve करना पड़ेगा. So कैसे करेंगे? Simply अगर simple करना है तो इसको multiply both sides with a square. a square से multiply किया तो क्या होगा दोनों तरफ? So 36 a square by a square 36 होगा plus 16 a square by b square equal to a square होगा ऐसा ना? Right? So a square by b square कितना है? 7 by 7 by 16. 16. So 36 plus 16 into 7 by 16 is equal to a square. So a square is equal to how much? 40. कितना? 43 है क्या? 23. So b square चाहिए तो क्या करेंगे? Multiply both sides with b square करेंगे? Multiply both sides with b square. So 36 b square by a square plus 16 is equal to b square. ऐसा? So a square by b square 7 by 16 है. b square by a square कितना होगा? 15 by 7. 16 by 7 plus 16 is equal to b square. आप देख सकते हैं b square इतना अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, right? So 16 कॉमन लिया तो 36 by 7 plus 1. So 16 into 43 by 7 is equal to b square. Okay. So what is the equation? X square by 43 plus y square by 43 times 16 by 7 जो है ऊपर चला जाएगा is equal to 1. So you don't need to multiply with 43. 43 को आप right hand side भेज दीजिए. So क्या आएगा? x square plus 7y square by 16 is equal to 43. Okay or not?
समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। नोट कर लीजिए अच्छे से, जो भी क्वेश्चंस किए उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व क्वेश्चन। आराम से नोट कर लीजिए। देखिए एक्सेंट्रिसिटी, जब भी मैं आपको एक्सेंट्रिसिटी मिलता है, you get the ratio of a square and b square because eccentricity depends on the ratio of major axis and minor axis. Passing through a point से आपको दूसरा इक्वेशन आएगा। दोनों को आप, ये easy method है, multiply both sides with a square, multiply both sides with b square, you easily get the answer. Okay? आगे जाएंगे। Yes, sir. Next, eccentricity is 2 by 3. Latus rectum is equal to 5. Center is 0, 0. Find horizontal ellipse, vertical ellipse, दोनों के इक्वेशंस निकालना है। एक बार horizontal ellipse assume करके आंसर निकालना है, एक बार vertical ellipse assume करके आंसर निकालना है। See whether you can do this or not. किसी का हुआ? First horizontal ellipse, इसका मतलब a greater than b, sorry, eccentricity is equal to root of 1 minus b square by a square. This implies e square 4 by 9 is equal to 1 minus b square by a square. So b square by a square is equal to 5 by 9. समझ में आया? Is the first equation clear? Yes or no? Yes. Second equation, lattice rectum का फॉर्मूला क्या है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स 2b square by a is equal to 5, right? So यहाँ से 2b square is equal to 5a, यहाँ से b square is equal to 5a square by 9. So if you combine these two equations, you get 2 times 5a square by 9 is equal to 5a. a cancel हुआ, एक 5 cancel हुआ, so a equal to 9 by 2. समझ में आ रही? देखिए वही 3-4 फॉर्मूलाज आप इधर उधर करते रहना है कोई भी क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहे? यस सर। a equal to 9 by 2, इसको आप फिर इसमें कर लीजिए। ओके, so 2b square is equal to 5 into 9 by 2.
So b square is equal to 45 by 4. A square is equal to 81 by 4. So what is the equation? X square by 81 by 4 plus y square by 45 by 4 equal to 1. 4 आप ऊपर लेके जा सकते हैं. 4x square by 81 plus 4y square by 45 is equal to 1. This is the horizontal ellipse. Okay. So vertical ellipse directly आप लिख सकते हैं. क्या होगा? x square and y square coefficients को उल्टा किया तो similar vertical ellipse बन जाएगा. The following properties. Yes. ठीक है. Yes, sir. आप देखा तो x square by a square plus y square by b square equal to 1 आने चाहिए एक ellipse है. अगर x square के नीचे जो नंबर है वो y b square करके y square के नीचे a square equal to 1 किया तो what happens? What is the difference between this ellipse and this ellipse? दोनों का शेप सेम होगा या नहीं? Are these two congruent or not? ये दोनों ellipses congruent होगा या नहीं? आपको a square b square से confusion हो रहा होगा. For example, x square by 9 plus y square by 16 equal to 1. X square by 16 plus y square by 9 equal to 1. Are these two ellipses congruent or not? Yes, sir. Yes, दोनों sir. ellipses congruent होगा. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एक horizontal डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा. समझ में? Yes, sir. दोनों ellipses का एक्सेंट्रिसिटी सेम होगा या नहीं? Yes. क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 1 माइनस छोटा नंबर पे बड़ा नंबर है. सॉरी, इसमें भी सेम आएगा एक्सेंट्रिसिटी. रूट ऑफ 1 माइनस छोटा नंबर पे बड़ा नंबर. राइट. इसका लैटिस रेक्टम भी सेम होगा क्योंकि इसका लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाई है, इसका 2a स्क्वायर बाई है. क्लियर? सो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हम फाइंड किया. सो वर्टिकल एलिप्स इज सिंपली 4x स्क्वायर बाई 45 प्लस 4y स्क्वायर बाई 81 इज इक्वल टू 1. हो गया. समझ आ रहे? क्लियर? अब चाहे तो पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं इक्वेशंस लेकर, सेम आंसर आएगा. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So these are the basic questions that you need to be able to solve for level 1. ठीक है. अभी के लिए अगर ये सारा क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो फर्स्ट लेवल इज कंप्लीटेड. ओके. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. अगला चैप्टर क्या है? हाइपरबोला. ओके. आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. So next chapter क्या है? हाइपरबोला. लास्ट चैप्टर. तो स्टार्ट करें.
So what is the difference between ellipse and hyperbola? Hyperbola is a conic section whose eccentricity is greater than 1. इतना है ना difference? पिछले चैप्टर में जो eccentricity 1 से छोटा है, now the eccentricity will be greater than 1. Okay? We have a focus, we have a directrix. Okay? You have a focus, you have a directrix. मान लीजिए आपको एक हाइपरबोला ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल e इक्वल टू 2. ओके, सो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे. व्हाट इज द एक्सिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सिस, याद है किसी को? Line passing through focus perpendicular on direct. डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर फोकस ड्रॉ हुआ. सो व्हेनेवर यू वांट टू प्लॉट एनी कोनिक सेक्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के ऊपर कौन कौन सा पॉइंट्स मेरा लोकस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. E का मतलब क्या है, SP by PM is equal to 2. सॉरी, so SP equal to 2 times PM, right? सही है. so ध्यान दे दीजिए, अगर P बिल्कुल बीच में लिया तो वो SP equal to PM होगा. ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट आएगा, सॉरी मिड पॉइंट. Yes, sir. एंड हम ऑलरेडी देखे एलिप्स अगर प्लॉट करना है तो क्योंकि E लेस देन 1 आएगा, पॉइंट P फोकस की तरफ ज्यादा मूव होगा. SP कम होना चाहिए, PM ज्यादा होना चाहिए एलिप्स के लिए, राइट? बट हाइपरबोला में SP हैज टू बी 2 टाइम्स PM. SP ज्यादा होना चाहिए, PM छोटा होना चाहिए. इसका मतलब P विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So Yes, sir. SP by PM 2:1 for example. समझ में आ रहा है? And as we have seen, for every ratio other than 1:1, for any ratio other than 1:1, you will have a internal division, you have an external division also. Yes or no? For example, sir. ellipse में 1:2 के लिए एक इस तरफ आया, एक इस तरफ आया ना, 1:2. There are 2 points on the axis, right? So 2:1 के लिए भी 2 पॉइंट्स आएगा या सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा? 2 पॉइंट्स आएगा ना. फॉर एग्जांपल इफ यू गो हियर, SP by PM 2:1 लग रहा है? Yes, sir. So you will have a point here and a point here, both these points. ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट. Both these points on the ellipse will satisfy the condition of the hyperbola. Clear? समझ रहे? अब इस पॉइंट से how will the hyperbola move, how will the other points come? हम ऑलरेडी देखे हैं, the points will always go away from the directrix or towards the directrix. देखिए, अगर यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो SP PM 2:1 है ना. ये SP and PM are directly proportional or indirectly proportional? Directly proportional है ना. ऐसा सही है. SP is equal to PM का मतलब क्या है, SP इंक्रीज हुआ तो PM भी इंक्रीज होना चाहिए ना. yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप देख सकते हैं पॉइंट मान लीजिए इस तरफ मूव होता है, डायरेक्ट की तरफ मूव हुआ तो PM का लेंथ छोटा होगा ना, PM का लेंथ कम होगा. yes or no? अभी PM का लेंथ ये है. if the point moves towards the directrix, PM का लेंथ कम हो रहा है ना. yes or no? एंड SP का लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है? कुछ आंसर दे सकते हैं? If P moves towards the directrix,
दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी विल नॉट वर्क। ये दिख रहा है कि नहीं? एसपी का लेंथ बढ़ेगा, पीएम का लेंथ घटेगा, सो रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. So the point should always move away from the directrix. समझ में आ रहा है? इसका मतलब मेरा प्लॉट जो है इस तरफ आना चाहिए। My plot will look something like this. Clear or no? Such that distances का रेशियो जो है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। क्लियर? ओके। मैं बहुत ज्यादा कर्व कर लिया, बहुत इतना कर्वेचर नहीं होगा, थोड़ा सा बहुत ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है? सच दैट देखिए ये डबल होना चाहिए ना। अब डबल दिख रहा है? अब डबल लग रहा है थोड़ा सा? पहले डबल Yes, जैसा sir. नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा दोनों इक्वल जैसे लग रहे हैं, इसलिए पैराबोला जैसा लग रहा है ना फर्स्ट कर्व। सो पैराबोला जो है थोड़ा सा ज्यादा मतलब अंदर की तरफ जाएगा। हाइपरबोला विल बी ए वेरी फ्लैट कर्व। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बट प्रॉब्लम ये है कि ओके इस तरफ तो हाइपरबोला तो आ गया, बट दिस पॉइंट आल्सो सैटिस्फाइज माय कंडीशन। ये कर्व और इस पॉइंट से तो जा नहीं रहे, सो इस पॉइंट के आसपास इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द कर्व अगेन, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स के तरफ नहीं जा सकते। ध्यान दे दीजिए, कर्व कैन नेवर गो टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि आप डायरेक्ट्रिक्स के सामने गया तो मान लीजिए पी यहाँ है, पीएम का लेंथ घट गया। समझ में? एसपी का लेंथ इतना नहीं घटा, अभी एसपी का लेंथ लग रहा है कि घटा है, बट इतना ज्यादा नहीं घटेगा सच दैट द रेशियो इज मेंटेन। सो अगर डायरेक्टली आप नंबर्स कैलकुलेट किया तो हियर आल्सो द कर्व विल गो अवे फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। समझ में? स्टार्टिंग में हम देखा है ना, हाइपरबोला का दो आर्म्स आएगा, ऐसा ना? Hyperbola has two arms, not one arm. Clear? समझ आ रहा है कि नहीं यहाँ? Yes, sir. So one arm will be in between the focus and the directrix, going away from the directrix. One arm will be on the other side, but this also goes away from the directrix. Clear or no? Okay. So this is how a hyperbola looks like. समझ में आया? So दो आर्म्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक इंटरनल डिवीजन वाला एक आर्म आएगा, एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दूसरा आर्म आएगा। क्लियर? एलिप्स में क्या हुआ? both internal division point and external division point are on the same side of the directrix. That's the difference between ellipse and hyperbola. Hyperbola में एक अंदर है, एक बाहर। Clear? Shall I go forward? Yes, sir. Yes, sir. So देखिए अब फिर एक बार देखेंगे। So if you have a focus and a directrix, first हम axis draw किया। So एक आर्म यहाँ आ गया। One arm of the hyperbola is like this. The other arm of the hyperbola, देखिए, this will not be symmetric about directrix. Directly ये जितना आगे है उतना ही पीछे नहीं आएगा। कैसा आएगा? देखिए ये S है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये P है, मान लीजिए SP is equal to 2 times PM. So इस तरफ point P यहाँ आएगा, such that SP is equal to 2 times PM, and the other hyperbolic arm will be like this. Clear? एक आर्म डायरेक्ट्रिक्स के सामने है, एक आर्म डायरेक्ट्रिक्स का दूर में है। Is it clear or not?
Yes, sir. सो अब आप क्या देख सकते हैं एलिप्स में, in ellipse we have seen that you have two foci and two directrices. Yes or no? तो यहाँ भी आप वैसा कुछ सोच सकते हैं. So if you take the midpoint of P and P dash का midpoint यहाँ कहीं आएगा. Yes or no? So यहाँ एक vertical line draw कर लीजिए. You draw a vertical line. राइट साइड जो भी है उसका इमेज ले लीजिए. ये डायरेक्ट्रिक्स का इमेज यहाँ आएगा. ऐसा फोकस का इमेज यहाँ कहीं आएगा, राइट. So correspond to every distance here. Will we have the same distance correspond to this focus and this directrix? अगर SP by PM2 है तो yes dash P by PM dash P2 होगा या नहीं? ऐसा राइट. अगर SP by PM अगर 2:1 है तो SP dash by PM dash भी 2:1 हो गया नहीं, क्योंकि सब कुछ मिरर इमेजेस है. ऐसा so you cannot distinguish whether this is the focus, this is the directrix, or this is the focus, this is the directrix. समझ आ रहे हैं? So इस hyperbola का for the red hyperbola S comma D can be the focus directrix. S dash and D dash can also be the focus directrix pair. समझ आ रहे हैं? So hyperbola also has what? A hyperbola also has two foci and two directrices. Clear or not? समझ में आ रहा है? Yes, sir. बट आप ध्यान से देखिए, ये वाला फोकस के लिए दूसरा पेयर का डायरेक्ट्रिक्स नहीं लेना है. If the focus is S, the directrix is D. If the focus is S dash, the directrix is D dash. Clear? How many pairs of foci and directrices are there? There are two pairs of foci and directrices. Clear? Clear? So next, what is the general equation? What is the general equation of foci and of the ellipse or of the hyperbola? अगर focus h comma k, directrix ax plus by plus c equal to 0, eccentricity is e. Eccentricity is e. Simply the equation is x minus h whole square plus y minus k whole square. Sp square is equal to e square times ax plus by plus c by root of a square plus b square का whole square. क्लियर है? एग्जैक्टली जैसा एलिप्स का इक्वेशन है वैसा ही हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा. क्लियर है? सही है ना? SP by PM is equal to E होना चाहिए. So SP square is equal to E square into PM square होना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. So एक एग्जांपल करेंगे. Simple example based on general equation of hyperbola.
go forward. नोट किया यहाँ तक? Yes, sir. Find equation of hyperbola. Focus is 2, 3. Directrix is 3x plus 4y minus 3 equal to 0. Eccentricity is equal to 2. So what is the equation of this hyperbola? Answer क्या होगा? Simply बोल सकते हैं? ऐसा no? x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to क्या आएगा यहाँ? कोई बोल सकते हैं? 4 into 4 times 3x plus 4y minus 3 whole square by 5. नहीं by 5 का whole square. ध्यान दे दीजिए. Whole square by 5 नहीं है. By 5 का whole square. क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? अगर होल स्क्वायर किया तो नीचे 25 लिखना पड़ेगा. क्लियर? क्लियर? अगर इसको आप सिंपल करना तो Yes, कर sir. सकते हैं. दैट्स योर विश. Yes, sir. और यू कैन लीव इट. एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है. x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square is equal to k times 2x plus 3y minus 7 whole square. Find values of k for which the equation represents a parabola, ellipse, hyperbola. एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन. देखिए कर सकते हैं कि नहीं. ये क्वेश्चन किसी को आइडिया है कैसे करना है? Can anybody give me idea how to solve this question? k का क्या-क्या वैल्यूज के लिए पैराबोला होगा, k का क्या-क्या वैल्यूज के लिए हाइपरबोला होगा, k का क्या-क्या वैल्यूज के लिए एलिप्स होगा. दैट्स द क्वेश्चन. किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करना है? Shall I solve this? देखिए ये इक्वेशन देखने से आपको sp square is equal to e square into pm square जैसा लग रहा है? Does No, this sir. equation look like My- similar to this? Exactly तो नहीं दिख रहा है, but थोड़ा सा similar तो दिख रहा है ना. थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने में ऐसा मैं चेंज कर सकता हूँ. Yes, sir. So
So what I do is x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square is equal to, यहाँ k तो है 2x plus 3y minus 7 whole square है, बट pm जैसा होना चाहिए, तो pm यूजुअली ax plus by plus c by root of a square plus b square होता है ना, सर that will be pm. ये तो sp square जैसा दिख रहा है, this is h, this is k, सर left side is looking exactly like x minus h whole square plus y minus k whole square, but right side में आपको 2x plus 3y minus 7 by root of 2 square plus 3 square हुआ तो तब दिखेगा सर, राइट? बट ऐसा मैं एक्स्ट्रा नंबर्स डायरेक्टली मैं लिख नहीं सकता हूँ, इसको आप न्यूट्रलाइज भी करना चाहिए सर. सो बाई रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 13 से मल्टीप्लाई करने से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट? So this implies x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square is equal to 13k times 2x plus 3y minus 7 by root of 2 square plus 3 square का whole square. समझ रहे? Now this is looking like sp square is equal to e square into pm square. Is exactly दिख रहा है? So now parabola के लिए condition क्या है? ये 13k should be equal to what? 1. So k equal to 1 by 13. Clear है? Okay. Ellipse के लिए 13k should be what? Less than 1, right? So k is less than 1 by 13. Clear? Okay or not? पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या है? 13k is greater than 1. So k is greater than 1 by 13. Okay or not? समझ में आ रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया? Yes, sir. तो यहाँ आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये e स्क्वायर है ना, k cannot be negative, right? So 13k less than 1 and greater than 0 भी होना चाहिए, right? यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Sub question: if the equation is a parabola, अगर मेरा इक्वेशन पैराबोला है तो find its lattice rectum, ये कर सकता है क्या? नहीं, अगर मेरा इक्वेशन पैराबोला है तो उसका लैटिस रेक्टम निकाल सकते हैं? Can someone give me some sort of process to do this? किसी का माइंड में कुछ प्रोसेस जैसे लग रहा है? आयशी, साधने, कमन, दीपान्विता कुछ
आइडिया आ रहा है क्या हो सकता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन का प्रोसेस? यस और नो? साग्निक, कुछ लग रहा है क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको जेई में आएगा, आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए। सौहार्द, कुछ आइडिया आ रहे? सम सॉर्ट ऑफ आइडियाज, एनी वेग आइडियाज? यस और नो? क्या सोच रहे कि या नहीं आ रहे? कुछ तो जवाब दीजिए। ओके, जवाब नहीं दे रहे। सो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इज, आप देख सकते हैं, इफ यू टेक ए स्टैंडर्ड एलिप्स, स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला देखने में ऐसा होता है ना, फोकस क्या होगा? a,0, डायरेक्ट्रिक्स इज d, x इक्वल टू माइनस ए, ऐसा। कोई भी एलिप्स, कोई भी पैराबोला को एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम किया तो उसको आप स्टैंडर्ड पैराबोला बना सकते हैं क्या नहीं? इसका आंसर करिए। मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मेरा पैराबोला ऐसा है, इसका डायरेक्ट्रिक्स ऐसा है। बाय मॉडिफाइंग द coordinate system, can we convert this parabola into a standard parabola? Yes or no? क्या सबका, क्या माइक्स काम कर रहा है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. मेरा Yes, क्वेश्चन sir. है, if you have a general parabola, by suitable choice of coordinate system, can we convert this into a standard parabola? That's the question. Yes or no? Yes, sir. Yes, ऐसे sir. कुछ Parabola. नहीं है, ये पैराबोला आपके पास कुछ ना कुछ पैराबोला है, यू हैव ए जनरल पैराबोला, इसका कुछ ना कुछ एक्सिस तो होता है सर। हाँ, कुछ ना कुछ एक्सिस तो होगा। इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, नया एक्स एक्सिस कर सकता है क्या? इसके बाद ये वर्टेक्स है ना, Yes, वर्टेक्स sir. पे टैंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, मान सकते हैं क्या? Yes, sir. So according to this x-axis and y-axis, will this parabola be a standard parabola? Y square equal to 4x होगा या नहीं? So इसका फोकस a,0 हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा सर, एंड लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा? 4A. 4a हो जाएगा सर। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई बोल सकता है? What is the distance between the focus and the directrix? 2A. 2a, is or no? So lattice rectum का length और ये 2a के बीच में कुछ रिलेशन है? Is there a relation between lattice rectum is equal to, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 2 times distance between focus and directrix, बोल सकता हूँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात सोचिए, ये रिलेशन जो है, does this relation depend on the coordinate system that we choose? देखिए, ये मान लीजिए, ये हम x एक्सिस y एक्सिस मान लिया ना,
वो मान लीजिए मैं माना ही नहीं, आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दिस, आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दिस assumptions, बट अभी भी डिस्टेंस और लैटिस रेक्टम के बीच में जो रिलेशन है वो काम करेगा नहीं करेगा? ये जो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस जो मैं मेजर किया, वो एक्स एंड वाई एक्सिस को एज्यूम किया था ना बीच में मैंने, वो बिना करके भी कर सकता हूँ क्या नहीं? कोऑर्डिनेट सिस्टम एजम्पशन से लैटिस रेक्टम का लेंथ चेंज हुआ या पहले जितना है अभी भी उतना ही है? सेम है। सेम है ना, बिकॉज लैटिस रेक्टम इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पैराबोला, सर। लैटिस रेक्टम का लेंथ जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करेगा या पैराबोला पे डिपेंड करेगा? पैराबोला पे डिपेंड पैराबोला करेगा। पे डिपेंड करेगा, ऐसा। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ये जो है ये पैराबोला में डिपेंड करते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिपेंड करते हैं? पैराबोला पे। पैराबोला में डिपेंड करते हैं ना। एक्चुअली मान लीजिए फिजिक्स में आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से वो डिस्टेंस चेंज होगा या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही डिस्टेंस आएगा, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस? या सिस्टम मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेंज हो जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस? अनचेंज रहेगा, है ना, सेम होगा ना। मान लीजिए एक पॉइंट का वेलोसिटी चेंज हो सकता है बट रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से? रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा ना। सो यहाँ जो मैं रिलेशन लिखा हूँ, will this be a general relation or will this relation depend on coordinate system? Lattice rectum is equal to 2 times distance between focus and directrix. Focus and directrix. आपको क्या लग रहा है? Will this relation depend on the coordinate system? No, sir. नो No, सर। this is a general relation. समझ आ रहे हो? ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। Based on this hint, can you solve this problem? Based on this hint, can you solve this problem? If the equation is a parabola, can you find me the lattice rectum? Anybody? किसी को कुछ आइडिया आ रहे? हाँ या ना? कुछ आइडिया नहीं आ रहा है क्या अभी भी? अगर ये पैराबोला होना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13k का वैल्यू 1 होना चाहिए सर। ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस 7 रूट 13 का होल स्क्वायर है सर। यही है ना इक्वेशन? Yes, sir. सो इसका लैटिस रेक्टम चाहिए, क्या करिएगा? कैन समवन गिव मी द प्रोसेस? आयुषी, times- अनिकेत, हाँ बोलिए बेटा अनिकेत। 2 times 2x plus 3y minus 7 by root 13. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, एक नंबर आना चाहिए मेरा आंसर। आई वांट ए नंबर। लैटिस रेक्टम का लेंथ तो नंबर होता है ना। समवन एल्स इज स्पीकिंग। आयुषी, कुछ आइडिया आ रहे क्या करना है? आवाज नहीं आ रही मुझे। साग्निक, कुछ आइडिया आ रहे हैं? आ रहा है? सौहार्द,
Anybody, some ideas? सर 2x plus 3y minus 7 इक्वेशन में 3,5 पुट करके निकलना है. सही है, हो गया. So if this is a parabola, what is the focus of this? Focus तो 3,5 है ना, ऐसा ना? यहाँ जो भी नंबर है वही focus का coordinates है. And what is the directrix? Directrix is nothing but 2x plus 3y minus 7 equal to 0. So what is the distance between focus and directrix? Distance between focus and directrix क्या है? Focus को डायरेक्ट्रिक्स पे सब्स्टिट्यूट करना है, बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है. 2 into 3 plus 3 into 5 minus 7 by root of 3 square plus 2 square है. सर कितना है? 6 plus 15 minus 7 कितना? 14 by root 13. सही है क्या नहीं? Yes, sir. So what is the lattice rectum? Lattice rectum is nothing but 2 times 14 by root 13. सही है? So the answer is simply 28 by root 13. Clear or no? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Shall I go to next question? Yes, sir. देखिए आप यही क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन. तो यहाँ पैराबोला में डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस? एक फॉर्मूला का लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वंस यू अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देना है तो मैं ऐसा दे सकता हूँ. x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square is equal to half of 2x plus 3y minus 7 by root 13 whole square. What is this? ये क्या है? ये कौन सा इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है क्या या हाइपरबोला और एलिप्स? क्या लग रहा है? Ellipse. क्यों? क्योंकि 13 के जो है हाफ हो गया, एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ गया ना. ऐसा दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स. ऐसा एलिप्स का भी लैटिस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला तो आता है ना आपको? एलिप्स का लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है? 2b स्क्वायर बाय a. ऐसा क्लियर? Yes, sir. But this is the equation for standard parabola, so standard ellipse, right? This is the formula for standard ellipse. Based on the knowledge of this formula, can you find the lattice rectum of this ellipse? इस ellipse का lattice rectum निकाल सकते हैं क्या? So अब आपको सोचना पड़ेगा कैसे. देखिए सोचने का तरीका देखिए. ओके, मान लीजिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड एलिप्स है. ऐसा ना, मेरे पास एक स्टैंडर्ड एलिप्स है. मेरे स्टैंडर्ड एलिप्स के एक फोकस है, एक डायरेक्ट्रिक्स है. ऐसा ना, फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या है? AE, 0. डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x is equal to a by e. ऐसा ना, सही है? ये तो आपको पता है ना? You know both of these concepts, yes or no? Yes, sir. Now the question is, what is the distance between the focus and the directrix? Focus and directrix के बीच में distance क्या होता है? a by e minus ae होगा. ऐसा Yes, sir. ठीक है? पैराबोला में इजी होता है. अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. a टाइम्स 1 by e minus e है. सर
क्लियर? a times 1 by e minus e, क्लियर है? ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, हमारा केस में मेरा फोकस इज 3,5, yes or no? And my directrix is 2x plus 3y minus 7 equal to 0, yes or no? So ये दोनों के बीच में डिस्टेंस इससे बराबर होना चाहिए क्या नहीं? समझ में आया या नहीं? जैसा यहाँ जो है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्टली लैटिस रेक्टम बाय 2 हो जाएगा, बट एलिप्स में इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। उसको कैसे डिराइव कर रहे हैं? एक स्टैंडर्ड एलिप्स में फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है a इंटू 1 बाई ई माइनस ई। ये डिस्टेंस जो है कोई भी एलिप्स में काम करेगा, बिकॉज this distance doesn't depend on the coordinate system, है सर? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बहुत साइलेंटली बैठा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितने लोग को समझ में आ रहा है? एक बार हाथ रेस करिए, मैं देखना चाह रहा हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, 2 हाथ रेस हुआ, 3 4 5 6 7। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज दीजिएगा तो मुझे समझ में आएगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स में चेंज नहीं किया हूँ, ऐसा ना? प्रीवियस केस में जो है वही है। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स अभी भी 14/√13 होगा, राइट? Yes, sir. क्लियर? Yes, सो sir. व्हाट इज ई ऑफ दिस एलिप्स? इस एलिप्स का ई कितना है? What is the eccentricity of this ellipse? 1 by 1/2. 1/2 नहीं है, 1/√2 है, क्योंकि ये e स्क्वायर का वैल्यू है सर, राइट? Yes, sir. सो फॉर सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस इसको 1/4 कर लेता हूँ, मुझे रूट्स नहीं चाहिए। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर 2 है तो यहाँ रूट्स आ जाएगा, अगर ये 1/4 है तो एक्सेंट्रिसिटी 1/2 हो जाएगा, राइट? सो ये क्या होगा? एक्सेंट्रिसिटी इज 1/2, so a times 2 minus 1/2 is equal to 14/√13, राइट? समझ में आ रहे हैं? यहाँ से a आ जाएगा या नहीं? a times 3/2 is equal to 14/√13, so a equal to how much? 28/3√13, okay or not? समझ में आया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आपको याद है तो लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला हम इन टर्म्स ऑफ b एंड a, एक फॉर्मूला है, दूसरा एक और फॉर्मूला है, याद है? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर होता है ना? सो वो पुट किया तो 2a इंटू 1 माइनस e स्क्वायर आएगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, एक a कैंसिल होके 2a इंटू 1 माइनस e स्क्वायर होगा, ऐसा? ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं ना मैं? Yes, sir. तो Yes. a मेरे पास है, e मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास। सो मैं पुट कर लेता हूँ 2 टाइम्स a कितना है? 28/3√13 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर 3/4। 1 माइनस ई स्क्वायर कितना है? 3/4, ऐसा? सो एक 3 कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2 14 टाइम्स कैंसिल हुआ, द आंसर इज 14/√13। समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया?
प्रोसेस एक साग्निक को समझ में आया और आदित्य दीपान्विता शयनदीप समझ में आया ओके सौहार्द माझी समझ में आया मौसिया समझ में आया ओके अनुचित समझ में नहीं आया तमन्ना जो लैपटॉप में देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं चाहिए तो चैट में बोल सकते हैं कैसे अनुजित संपूर्ण सप्तर्षि अब तीनों को समझ में आया yes or no? Ayushi, how did we get E into A into E 1 by E minus E? Ellipse में focus का coordinates AE, 0, directrix is x is equal to A by E. So यहाँ से यहाँ तक distance A by E है, focus तक distance AE है. So बीच में distance कितना होगा? AE minus A by E, which is A into E minus 1 by E. समझ में आया आयुषी? पूरा समझ में आया प्रोसेस? So if you are given a general ellipse and a general parabola, you can find the lattice rectum. समझ में आ रहे? जैसे आपको दो स्टेप लगेगा, एक बार फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. पैराबोला में डायरेक्टली इसको 2 टाइम्स किया तो लैटिस रेक्टम आ जाएगा. एलिप्स में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. डिस्टेंस को a इंटू 1 बाई e माइनस ई से इक्वेट करना है. e आपको इक्वेशन से आएगा एंड इस इक्वेशन से a आ जाएगा. वंस यू गेट a एंड d, 2a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस फॉर्मूला से लैटिस रेक्टम आ जाएगा. क्लियर? नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. बेसिक जनरल इक्वेशन देके वो लैटिस रेक्टम पूछ सकते हैं. लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so we have understood the general equation of hyperbola. So एक बार फिर लिखता हूँ. General equation of hyperbola is nothing but x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to e square into ax plus by plus c by root of a square plus b square का whole square. Where e is greater than 1. Focus is h comma k and the directrix is ax plus by plus c equal to 0. Is it clear? Yes, sir. Now, I want the standard equation of hyperbola. स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है? सिंपल इक्वेशन है सर. सही. So if this is the focus and this is the directrix, so simple equation निकालने के लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को फेवरेबली चूज करूंगा. तो मैं क्या करता हूँ? फर्स्ट आई विल ड्रॉ द एक्सिस ऑफ माय हाइपरबोला. ओके,
दिस द एक्सिस राइट. सो एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ. मान सकता हूँ क्या? Yes. सो यहाँ एक हाइपरबोला आएगा. I'll get two arms. One arm will be like this. एक आर्म यहाँ ऐसा आएगा, एक आर्म थोड़ा सा दूर में आएगा. ऐसा ना? I'll get something like this, right? So y-axis, I won't be choosing directrix as y-axis. So मैं क्या करूँगा? ये दोनों पॉइंट्स को a डैश मान रहा हूँ, वर्टिसेस को a डैश मान रहा हूँ. ओके, वर्टिसेस का डेफिनेशन क्या है? The points where the curve meets the axis are called the vertices. Okay, these two are vertices. Okay, so ये दोनों vertices का मिड पॉइंट ले रहा हूँ. इसको मैं origin मान रहा हूँ. मान सकता हूँ क्या? yes, Yes. अगर इसको origin मान लिया तो यहाँ एक perpendicular ड्रॉ किया तो वो क्या कौन सा लाइन होगा? This will be the y-axis. yes, sir. So x-axis y-axis कैसे assume करना समझ में आ रहा है आपको? Okay. Now let us assume point A as a comma 0. इसका मतलब origin से A तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा. उस डिस्टेंस को मैं A मान रहा हूँ. मान सकता हूँ क्या? Can I do this? उस डिस्टेंस को अगर A मान लिया तो A का कोऑर्डिनेट्स a, 0 होगा. Yes, sir. A डैश का कोऑर्डिनेट्स माइनस a, 0 होगा या नहीं? Yes, sir. क्योंकि इसको मिड पॉइंट चूज किया ना मैंने. Yes, sir. एक वर्टेक्स a, 0 है तो दूसरा वर्टेक्स का माइनस a, 0 होगा. ओके, नाउ जैसा मैं एलिप्स में किया हूँ, in the same way you can find the vertices, you can find the location of the focus and directrix. आप निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोकस का डिस्टेंस को c मान लीजिए. मान सकता हूँ ऑरिजिन से फोकस तक डिस्टेंस को c मान लीजिए, एंड y एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस को d मान लीजिए. ओके, ये c का मान d जो है आप फाइंड कर सकते हैं. कोई एलिप्स में डेरिवेशन देखे है? हम किए हैं एलिप्स में डेरिवेशन, याद है? फॉर एग्जाम्पल a lies on this hyperbola. this distance by this distance क्या होना चाहिए? e होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. SCA क्या होता है? SCA is nothing but, ध्यान से देख लीजिए, SCA का डिस्टेंस क्या होगा? C माइनस A होगा. yes or no? क्योंकि SA is nothing but OS minus OA. yes or no? OS minus OA किया तो AS आएगा. Yes, sir. C minus sir. A divided by, अगर इस पॉइंट को सम m मान लिया तो AM कितना होगा? AM is nothing but A minus D is equal to E. Okay, C minus A by A minus D equal to E. yes or no? So C minus A equal to AE minus ED. C plus ED is equal to A plus AE. ऐसा एक रिलेशन है. Similarly, if you take point A dash as a point on the hyperbola, SA dash by A dash M, ये भी E से बराबर होना चाहिए. yes or no? SA dash by A dash M is also equal to E. yes or no? SA dash कितना होगा? What is SA dash? C plus A. C plus A divided by what is A dash M? A dash से M तक distance. A plus D. A plus D
is also equal to E. So यहाँ से C plus A equal to AE plus ED. So यहाँ से आएगा C minus ED equal to AE minus A आएगा. This is the first equation, this is the second equation. दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? देखिए दोनों को ऐड किया तो 2C is equal to 2AE आ रहा है क्या? So C equal to what? AE, okay? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2ED is equal to 2A आएगा. D equal to A by E. Exactly जो एलिप्स में आया exactly वही इक्वेशन है, एक भी चेंज नहीं है. सो फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? AE, 0. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x equal to A by E. क्लियर? ओके और नो? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. So if you take a standard ellipse, standard hyperbola का properties क्या है? Properties are nothing but, so if you take the coordinate system x and y axis, if you draw the hyperbola will be symmetric about x and y axis. समझ में आ रहे हैं? क्योंकि a and a dash का मिड पॉइंट को हम ऑरिजिन मान लिया, राइट? ऐसा. And vertices का coordinates a, 0 minus a, 0, right? Focus का coordinates क्या होगा? a, 0 minus a, 0. And directrices का coordinates क्या होगा? और equations x is equal to a by e, x is equal to minus a by e. Okay? एलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस देखिए एक बार. एलिप्स में फोकस इज नियरर टू y axis, डायरेक्ट्रिक्स इज farther to y axis. yes or no? हाइपरबोला में कौन सामने है? डायरेक्ट्रिक्स सामने है, फोकस दूर में चला गया. ऐसा क्यों है? कोऑर्डिनेट्स तो सेम है ना अभी भी. इसेंट्रिसिटी greater than 1. हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई a विथ e, ये नंबर a से बड़ा आएगा. ऐसा. सो a से दूर, a से और आगे होगा फोकस. एलिप्स में a को आप e से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e इज लेस देन 1, सो आपका नंबर जो है वो सामने चला जाएगा. क्लियर? ओके और नॉट? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. So based on this focus and based on this directrix, can you find the equation? sp square is equal to e square into pm square है ना? ये डेरिवेशन में फिर नहीं करूंगा, एलिप्स में मैं सब कुछ कर चुका हूँ. Okay, so you're going to get something like this: x square by a square plus y square by a square into 1 minus e square is equal to 1 आएगा. पूरा आप सिंप्लीफाई किया तो this is what you're going to get as the equation of hyperbola. एलिप्स में हम क्या किया? a square into 1 minus e square को b square assume किया या नहीं? b square का फॉर्मूला क्या होता है? a square minus a square e square होता है ना? Yes, sir. Yes, sir.
बट यहाँ हाइपरबोला में प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो बी हियर, कैन यू सी दिस? एलिप्स में अच्छा सा यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना वाई एक्सिस को, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया ना हमने, ऐसा। बट हाइपरबोला में ऐसा कुछ बी है? वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं हाइपरबोला? No, sir. No, तो बी sir. तो है ही नहीं, ऐसा। So in ellipse there is major axis and minor axis, but hyperbola में major axis minor axis जैसा नहीं है, can you see this? And दूसरा है a square into 1 minus e square is a negative quantity in hyperbola. क्यों बोलिए? E square is greater than 1. हाँ, क्योंकि एलिप्स में ये पॉजिटिव नंबर है, बट हाइपरबोला में ये नेगेटिव नंबर है, कैन यू से दिस? Yes, मैं sir. क्या करता हूँ देखिए, हाइपरबोला में व्हाट आई विल डू इज x square by a square minus of y square into a square into 1 minus e square, sorry, a square into e square minus 1 equal to 1 करता हूँ। एक माइनस में कॉमन लेता हूँ, ले सकता हूँ 1 minus e square को e square minus 1 लिख के एक बीच में एक माइनस डालता हूँ। कैन आई डू दिस? सेम है ना, ऐसा। Yes. Yes, sir. अब a square into e square minus 1 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर? ये पॉजिटिव नंबर है ना, ऐसा ना। 1 minus e square नेगेटिव है तो e square minus 1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Yes, sir. So what I'll do is simply x square by a square minus y square by ये जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको मैं b square एज्यूम कर रहा हूँ। In ellipse b square is visually present before you. b का मतलब आपको देख सकते हैं, b को आप देख पाएगा ellipse में, but in hyperbola you cannot see b. b कहाँ है आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा ना। b is just an imaginary quantity in hyperbola. a square into e square minus 1 को मैं b square एज्यूम कर रहा हूँ। Can you see this difference? Visually there is no b present on the y-axis. Okay, that's the difference between b square in hyperbola and b square in an ellipse. ellipse में b square आपको दिखेगा, hyperbola में b square जो है it's just number. Can you see this? The difference समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So hyperbola में b square is nothing but a square into e square minus 1, ये जो नंबर है उसको हम b square बोल रहे हैं। क्लियर? मुझे इतना पता है कि a square into e square minus 1 एक पॉजिटिव नंबर है, जो भी वो पॉजिटिव नंबर है उसको मैं b square मान रहा हूँ। क्लियर? So how does the equation of hyperbola look like? x square by a square minus y square by b square equal to 1 जैसे लगता है। That's the only difference between ellipse and a hyperbola. यहाँ प्लस के प्लेस में एक माइनस आएगा। ओके, सो अभी तक हम देखे हैं एलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे दिखेगा? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे। Okay, sir. ओके, तो ओके बेटा, बाय फॉर टुडे, कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।